Hello kids, welcome back. So kids, in our last video we have completed our chapter paint. In that class we have completed our chapter 10. Now today we will start a new chapter, that is WordPad. Today we will start a new chapter, that is WordPad, and this is chapter number 6. This is chapter number 6 and the chapter name is WordPad. तो जैसे पेंट एक एप्लीकेशन है, सिमिलरली वर्डपैड इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन. ये भी एक एप्लीकेशन है. विद द हेल्प ऑफ वर्डपैड वी कैन क्रिएट द डॉक्यूमेंट फाइल. ओके, so let us see what are the things that we have to read in this chapter. So the WordPad, let us see the topic covered. Topic covered: WordPad, starting WordPad, WordPad window, entering text, saving a document, opening a saved file, selecting text in a document, editing text, changing the font of text, changing the size of the text, changing the font color, exiting the WordPad. These all are the topics that we have to cover in this chapter. These all are the topics that we have to cover in this chapter. Okay, so now let us see what this computer wants to tell us. So this computer wants to tell us, hello friends, now you are familiar with the keyboard and mouse. So it is saying that, hello friends, now you are familiar with the keyboard and mouse. So let's have some practical session. Let's have some practical session and practice using them by typing in a program called WordPad. So now we have to start a new chapter, that is WordPad. Okay. Now what in this chapter we have to start? WordPad. देखो, वर्डपैड इज अ वर्ड सॉफ्टवेयर जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अवर डॉक्यूमेंट. जैसे हम पेन की मदद से, पेंसिल की मदद से वी राइट एनीथिंग ऑन द कॉपी, सिमिलरली with the help of WordPad we can type anything on the computer. चलो देखते, let us read the chapter and then we will do the practical also. Okay, WordPad is a program that is especially meant for typing. WordPad is a program that is especially meant for typing text. WordPad has many features through which you can make your text appear more beautiful and attractive. So the वर्ड में क्या होता है, वर्डपैड में बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जिसकी हेल्प से वी कैन मेक अवर डॉक्यूमेंट मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल. विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन मेक अवर डॉक्यूमेंट मोर ब्यूटीफुल. एंड अट्रैक्टिव. ओके, नाउ जैसे हम जब सिंपल पेन पेपर से लिखते हैं, सो व्हाट हैपन, जब हम सिंपल पेन पेपर से लिखते हैं तो वो कैसा दिखता है, वो बहुत प्लेन दिखता है. बट इन कंप्यूटर व्हेन वी टाइप समथिंग, इन कंप्यूटर हम क्या करते हैं, हम जब टाइप करते हैं कुछ भी वर्ड पे, सो व्हाट हैपन, हम उसको अलग अलग कलर से हम उसको ब्रॉड कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन. सो वी कैन ब्यूटीफाई अवर डॉक्यूमेंट. व्हाट वी कैन डू, वी कैन ब्यूटीफाई अवर डॉक्यूमेंट. हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, वी कैन ब्यूटीफाई देम. ठीक है, सो लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट वर्डपैड. लेट अस सी द फर्स्ट थिंग इज हाउ टू स्टार्ट अ वर्डपैड. You can open WordPad program by following these steps. So the following are the steps that we have to follow to open the WordPad program.
First is click on the start button. First we have to, what we have to do? First we have to click on the start button. Okay. Then click on all program. After clicking on the start button, next is to click on all program. Now what will happen? A list of the programs appears. Then click on accessories. Accessories sub menu will appear. Click on WordPad. Then what happen? Click on WordPad. The WordPad window will appear. What will happen? WordPad window will appear. Okay. Next what happened? WordPad window. तो अभी हम ओपन करते हैं WordPad. So let us open WordPad. So what we have to do? We have to go on start menu. सबसे पहले we have to click on start menu. And here I will type word. वर्ड टाइप करते ही देखो वर्ड पैड का ऑप्शन आ जा रहा है एंड वी विल ओपन इट. सो दिस इज वर्ड. देखो इस तरह का दिखता है हमारा वर्ड पैड. दिस इज हाउ आवर वर्ड पैड अपीयर्स. इस तरह का हमें हमारा वर्ड पैड क्या करता है, दिखता है ना. देखो ऊपर इसमें कितने सारे मेनू है ना. लेकिन एक चीज और देखो, जैसे होम और जैसे फाइल होम व्यू, ये ऑप्शन हमारे पेंट में भी थे. देखो पेंट में भी हमारे वो ऑप्शन है फाइल होम मेनू. देखो फाइल होम व्यू. एंड सेम ऑप्शन हमारा किस में है? सेम ऑप्शन इज देयर. कहाँ पे है भाई? वर्ड में भी देखो वो सेम ऑप्शन है. देखो वर्ड में भी हमारे पास वही सेम ऑप्शन है, फाइल होम एंड व्यू. ओके, नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर चैप्टर. नाउ WordPad window. Now we will read about WordPad window. After you open WordPad, after you open WordPad, you will see that the interface is completely modified in comparison in previous version of the WordPad. So what will happen? Interface is completely modified. Okay. Now see. इंटरफेस इज कम्प्लीटली मॉडिफाइड विद द प्रीवियस वर्जन ऑफ वर्डपैड. पहले जो वर्डपैड का वर्जन था और अभी करेंट का जो वर्डपैड का वर्जन है वो क्या है? पूरी तरह से मॉडिफाई हो चुका है. टूल बार एंड मेनू बार हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रिबन्स एंड टैब्स. नाउ अर्लियर जहाँ पे टूल बार्स और मेनू बार थे, अब उनकी जगह पे क्या हो गया है? अब टूल बार्स और मेनू बार की जगह हो गया है रिबन्स एंड टैब्स. तो देखो क्या क्या है? इंसर्शन पॉइंट, WordPad button or file tab, then quick access toolbar, then title bar, then tab, and then ribbons. And then उसके बाद क्या है? What is next? Next is ribbon. तो WordPad क्या है? जैसे जैसे विंडोज का वर्जन बढ़िया होता जाता है उसी तरह WordPad भी क्या करता जाता है? अपने आप को मॉडिफाई करता जाता है. तो वर्डपैड ने किसको रिप्लेस किया है? रिबन्स एंड टैब. नाउ रिबन्स और टैब की जगह अब क्या आ गया है वर्डपैड में? वर्डपैड में रिबन्स और टैब की जगह अब आ गया है टूल बार एंड मेनू बार हैव बीन रिप्लेस्ड बाय. देखो पहले टूल बार एंड मेनू बार था, अब क्या आ गया? रिबन्स एंड टैब्स. अब आ गया है रिबन्स एंड टैब. तो चलो हम अपना ऐप ओपन करके इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं. अबाउट इंसर्शन पॉइंट, क्विक एक्सेस टूल बार, title bar, tab and ribbon, and then we will read these things one by one. Okay.
सो लेट अस ओपन द ऐप। यहाँ पे हमने वर्ड पैड को नीचे टाइटल बार में रखा था, अब हमने इसको ओपन कर लिया है। लेट मी मिनिमाइज इट और रिस्टोर्ड इट। अच्छा आप देखो ये सेम है ना एकदम, जिस तरह का हमारा ये पिक्चर है, जिस तरह की हमारी बुक में पिक्चर है, उसी तरह की पिक्चर हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है ना। देखो अब देखो कंपेयर करो, देखो दोनों कितने हद तक सेम है ना। देखो यहाँ पे भी देखो फाइल होम व्यू, हियर ऑल्सो फाइल होम व्यू। अच्छा वेट लेट मी डू वन मोर थिंग। अब देखो अब ये आप ध्यान से देखो, देखो इंसर्शन पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज इंसर्शन पॉइंट, जहां पे हमारा कर्सर मूव कर रहा है वो क्या है, इंसर्शन पॉइंट। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम कोई टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड पैड बटन और फाइल टैब। नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड पैड बटन। अब ये देखो जहां पे फाइल लिखा हुआ है, दिस फाइल इज व्हाट, वर्ड पैड बटन और फाइल टैब। देखो जब हम उस पे कर्सर ले जा रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा है ना, वर्ड पैड। Click here to open, save or print and to see everything as you can do with your document. Now next is quick access toolbar. ये देखो ऊपर क्या है, this is what, this is quick access toolbar. नेक्स्ट इज टाइटल बार, ये जो ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा है जहां पे लिखा है डॉक्यूमेंट डैश वर्ड पैड, दिस इज व्हाट, दिस इज टाइटल बार। दिस इज व्हाट, दीज ऑल आर द रिबन्स, है ना, these all are the ribbons. And now see home and view, these two are the tabs। ये क्या है, tabs है। तो ये समझ में आया आपको, चलो एक बार फिर से मैम समझाएं। अब ये मैंने पूरा ओपन किया तो देखो जहां पे ये कर्सर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वो क्या है, वो है हमारा इंसर्शन पॉइंट। वहां पे हम क्या कर सकते हैं, कोई चीज एंटर कर सकते हैं। ओके नाउ इंसर्शन पॉइंट के बाद दिस इज व्हाट, दिस इज फाइल टैब और वर्ड टैब। दीज बोथ आर होम एंड व्यू टैब। ऊपर क्या है इनके, होम एंड व्यू टैब के ऊपर क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। आफ्टर क्विक एक्सेस टूल बार के बाद क्या है, ये क्या है, दीज ऑल आर द रिबन्स। ये सारे क्या है, रिबन्स हैं। ओके नाउ लेट अस मूव बैक टू अवर चैप्टर। Okay, so first is title bar. First option is title bar. So the topmost bar show the name displayed in the document. The topmost bar of the window shows the name of the displayed document. जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन की है उस डॉक्यूमेंट का नेम क्या है, उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, वो हमें कहाँ दिखता है, टाइटल बार में वो हमें दिखता है। वो हमें कहाँ दिखता है, टाइटल बार में वो हमें दिखता है। ओके नाउ नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार। अगला क्या है, अगला है क्विक एक्सेस टूल बार। देखो ये यही सारी चीजें हमने पढ़ी थी पेंट में भी, पेंट में भी हमने यही सारे ऑप्शंस पढ़े थे, है ना, क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार, इट डिस्प्लेस द क्विक एक्सेस बटन फॉर द सेव undo and redo command, for the save undo and redo command। save undo and redo command के लिए which button we use क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार हम यूज करते हैं। नाउ अगला व्हाट इज वर्ड पैड बटन और द फाइल टैब। नेक्स्ट इज वर्ड पैड बटन और द फाइल टैब। अब उसके बाद क्या है, वर्ड पैड बटन या we can also call it फाइल टैब। हम उसको एक और क्या कह सकते हैं, we can call it
फाइल टैब. ओके, तो व्हाट इज व्हाट फाइल टैब में हमें क्या मिलता है? फाइल टैब में वी गेट ऑल दोज ऑप्शन जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं या उसको प्रिंट कर सकते हैं, न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं. ये सब हम किसकी मदद से कर सकते हैं? ये सब हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ड पैड बटन और फाइल टैब. वर्ड पैड बटन की मदद से या फाइल टैब की मदद से. ओके, नेक्स्ट इज वर्ड पैड बटन और फाइल टैब के बाद टैब्स. होम एंड व्यू आर द टू टैब्स इन द वर्ड पैड. अब दो टैब्स कौन से हैं? जैसा कि अभी हमने स्क्रीन पे देखा, होम एंड व्यू टैब. होम एंड व्यू टैब आर द टू टैब्स. कहाँ पे होता है होम एंड व्यू टैब? आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे. आपके टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका होता है होम एंड व्यू टैब. ओके, नेक्स्ट इज ribbon. It displays a group of relatable command in tabs. It displays a group of relatable command in tabs. Each tab offers shortcut buttons of the common task. And other one is insertion point. Insertion point मैंने बताया, it is what? It is a flashing. It is what? It is a flashing line on the screen where you type the text. It is a flashing point on the screen where what you do? You type the text there. ओके, तो इतनी चीजें हमने समझ ली. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस थिंग इन अवर एप्लीकेशन. वर्डपैड एप्लीकेशन में भी हम ये सारी चीज समझेंगे. देखो, अब जब हम फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो क्या आ रहा है मेरे पास? न्यू का ऑप्शन आ रहा है, ओपन का ऑप्शन आ रहा है, सेव करने का. न्यू का ऑप्शन, सपोज मुझे ये वाली फाइल नहीं चाहिए, मुझे एक न्यू फाइल चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ पे एक मैं न्यू फाइल ओपन कर सकती हूँ. नेक्स्ट वन इज ओपन. जब मैं ओपन, अब कोई एग्जिस्टिंग फाइल, कोई ऐसी फाइल जो ऑलरेडी है मेरे डेस्कटॉप पे, मुझे उसको ओपन करके उसमें वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगी? कोई नई फाइल में ओपन करूंगी. नेक्स्ट इज सेव. अब ये जो फाइल है, सपोज मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है, और उसको मुझे सेव करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? सेव ऑप्शन पे. अच्छा, नेक्स्ट इज सेव एज. सपोज किसी फाइल को मुझे किसी फिक्स्ड लोकेशन पे सेव करना है, सो व्हाट आई विल डू? अगर किसी फाइल को मुझे उसकी फिक्स लोकेशन पे सेव करना है, सो आई विल क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन. सेव एज का ऑप्शन आते ही ऐसा हमारा फाइल आ जाएगा और वहां पे हम क्या करेंगे? इसको सेव कर सकते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंट. अब अगला क्या? सपोज मैंने कोई पेपर बना लिया या कोई क्वेश्चन बनाया, अब मुझे चाहिए कि भाई मैं वो प्रिंट कर दूं, तो मैं कहाँ जाऊंगी अगर मुझे उसे प्रिंट करना होगा? तो आई विल क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन. प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने पे और उसके बाद उसको प्रिंटर से उसको अटैच करने पे आई कैन क्लिक ऑन, आई विल गेट माई हार्ड कॉपी, है ना? Okay, and after print, next I am having page setup, send in email, word about WordPad and exit. तो exit पे क्लिक करूंगी तो क्या हो जाएगा? मैं ये प्रोग्राम को लीव कर सकती हूँ. डोंट सेव. देखो, मैंने एग्जिट किया और अब मैं उस प्रोग्राम से बाहर निकल आई. ओके, तो अभी हमने किसके बारे में समझा? अभी हमने समझा फाइल टैब के बारे में, है ना? फाइल टैब के बारे में हमने समझा.
Okay. Now after is file tab, let us see the quick access toolbar. ओके तो हमने अभी क्या किया, हमने फाइल टैब को समझा ना। इट्स आवर टर्न टू क्विक एक्सेस टूल बार। देखो क्विक एक्सेस टूल बार मीन, देखो लेट मी शो यू समथिंग। अब यहाँ इंसर्शन पॉइंट पे हियर आई एम गोइंग टू टाइप समथिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, से लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कुछ बड़ा सा कंप्यूटर, मैंने टाइप कर लिया कंप्यूटर, बहुत बड़ा हो गया। मैंने टाइप किया मैथ्स, ठीक है। अब ये देखो कितना बड़ा सा टाइप हुआ है ना। अब मुझे क्या करना है इसको, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसको रीडू अनडू करना है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, देखो यहाँ पे सबसे ऊपर मेरी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे टॉप पे देखो, यहाँ पे एक बैक एरो बना है ना, रिवर्स द लास्ट एक्शन, हम वो करेंगे। और देखो ये क्या हुआ, हमारा मैथ यहाँ से हट गया। और जब हम इसको रीडू करेंगे तो देखो क्या हुआ, हमारा मैथ वापस आ गया है ना। तो क्विक एक्सेस टूल बार का यूज होता है किसी भी काम को जल्दी से करने के लिए, है ना। सपोज हमने कोई गलत फाइल को किसी अच्छे करेक्ट फाइल को हमने डिलीट कर दिया, तो उसको वापस पाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल क्लिक ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। हम किस पे क्लिक करेंगे, हम क्लिक करेंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर क्विक एक्सेस टूल बार अब अगली चीज क्या है भाई, अगली चीज है होम टैब एंड व्यू टैब, ठीक है। होम टैब तो ये टैब जो ओपन है, इसमें क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास है क्लिपबोर्ड, इसमें हमारे पास क्या क्या है, वी आर हैविंग क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट एंड एडिटिंग, ठीक है। बट जब हम व्यू पे क्लिक करते हैं, सी मैंने किस पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया। व्यू मीन्स व्हाट, टू सी एनीथिंग। तो हम यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं, सी जूम पे देखो, we can click on the zoom in, we can click on the zoom out, then the 100%, then ruler, status bar, word wrap, measurement unit. So what are the measurement unit? Okay, inches, centimeter, point, pixels. Okay, so first of all let us try the zoom in. zoom in करके देखते हैं क्या होता है। देखो zoom in करने पे क्या हो रहा है, ये बड़ा होता जा रहा है ना। सी कितना बड़ा सा मैथ लिख के आया ना आपके स्क्रीन के सामने, देखा कितना बड़ा सा मैथ आया ना। जब हमने क्या किया, जूम इन किया, जूम इन हम करते जाएंगे और ये क्या होता जाएगा, ये आपकी स्क्रीन पे बड़ा सा मैथ आता जाएगा। ओके, तो जूम इन करने के बाद नेक्स्ट इज जूम आउट। अब देखो हमने क्या किया, अब हम इसको जूम आउट कर रहे हैं ना, अब ये छोटा हो गया। एंड जब हम इसको 100% पे करते हैं तब क्या होता है, 100% पे ये वो स्टेटस शो करता है जो कि ये एक्चुअली था। ओके, तो हमने देखा जूम इन जूम आउट, ठीक है। Next what we have to see next is, okay, so we have covered almost all the things. Now let us move ahead with the chapter. Next we are having entering text. Next we are having entering text. अब अगला है कि text को enter करना। So how can we enter the text? We can enter the text with the help of our, we can enter the text with the help of our keyboard. Keyboard की help से we can, what we can do, we can enter the text. keyboard की help से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने text को enter कर सकते हैं। The text can be entered with the help of a keyboard. The text you type will appear where the insertion point flashes on your screen. Text जो भी हम type करेंगे वो कहाँ appear होगा,
जहां पे हमारे स्क्रीन का इंसर्शन पॉइंट आ रहा है वहां पे क्या होगा, टेक्स्ट अपीयर होगा। Okay, next, type the text for your document. When you have reached the end of a line, WordPad automatically send the text to the next line. जब आप एक पूरी लाइन कंप्लीट कर लोगे तो क्या होगा, वर्डपैड ऑटोमेटिकली उसको सेकेंड लाइन में सेंड कर देगा। अब ऐसा नहीं होगा कि वो यहाँ से लिखते लिखते वो आपका ये लिखता जाएगा ऐसे 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 ऐसे, वो ऐसा नहीं हो कि एंड तक लिखता जाएगा। जब आप किसी लाइन के एंड पे पहुंचोगे तो वर्डपैड ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में सेंड कर देगा। ओके, सो यू ओनली हैव टू प्रेस एंटर की व्हेन यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइन। तो प्रेस आप एंटर की कब प्रेस करोगे, जब आपको वाकई में एक नई लाइन की जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, एंटर की प्रेस कर दोगे। ओके, सो लेट अस टाइप अ टेक्स्ट। चलो एक टेक्स्ट टाइप करके हम देखते हैं। लेट मी ओपन द वर्डपैड, हमें वर्डपैड ओपन करने दीजिए एंड होम। ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टाइप करना है अपनी स्क्रीन पे। मुझे क्या करना है, आई वांट टू टाइप समथिंग। ओके, तो अब मैं क्या टाइप करूंगी, चलो आई विल टाइप समथिंग अबाउट कंप्यूटर। मैं, क्योंकि हम कंप्यूटर की क्लास में हैं तो मैम क्या करेंगे, कंप्यूटर के बारे में कुछ टाइप करेंगे। सो मैम इज गोइंग टू टाइप सी, कंप्यूटर is a machine that can be instructed to carry out sequences of arithmetic or logical operation automatically और लीव इट। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या कर रहे थे, हम कुछ टाइप कर रहे थे, लेकिन जब हम यहाँ तक इस लाइन के एंड तक पहुंचे तब क्या हुआ, मुझे एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़ी। ये ऑपरेशन, ये जो वर्ड है ऑपरेशन, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नीचे आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया। ऑपरेशन वाला वर्ड क्या हुआ, क्या हो गया, वो नीचे आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंस ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतना कर लिया हमने। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब हमें ये आ गया कि हाउ टू एंटर एनीथिंग ऑन इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कोई चीज कैसे एंटर करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू सेव द फाइल, अगला क्या है कि भाई हम फाइल को क्या करेंगे, कैसे सेव करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट सेविंग द फाइल। तो हाउ कैन वी सेव द फाइल, चलो इतना तो हमने कर लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग योर टाइपिंग you can save your document in the computer and hard disk. To save the document, follow the steps as click on the file tab, click on save. The save as dialog box will appear. What will happen? Save as dialog box will appear. Okay, save as dialog box क्या होगा, वहां पे appear हो जाएगा। Okay, so we have done up to here today. Now in next class we will continue with something more. Okay, till then, goodbye.